Hello students. In previous lecture we have studied about the process of microsporogenesis and formation of male gametophyte. In this lecture we will be studying about the structure of gynoecium or megasporangium, the process of megasporogenesis and formation of female gametophyte. So let us first begin with the structure of gynoecium and megasporangium. Gynoecium basically is a female reproductive part of the plant, and pistil or carpel are the unit of gynoecium. Pistil भी बोल सकते हैं या फिर उसको कार्पेल भी बोल सकते हैं, राइट. सो gynoecium ये एंजियोस्पर्म फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट. और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के यूनिट होता है पिस्टिल या फिर उसे हम कार्पेल भी बोल सकते हैं. तो यहाँ इस फ्लावर में आप देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट को हम पिस्टिल या फिर गाइनोइशियम बोलेंगे या फिर कार्पेल बोलेंगे. Now this pistil may be of two types, like if there is only single pistil as in this example, it is called monocarpellary, or in some cases in some flowers there would be more than one carpel or more than one pistil, and in such case it is said to be multicarpellary type, right. So based on the number of pistils the flowers can be grouped as monocarpellary or multicarpellary. monocarpellary means जिसमें एक ही पिस्टिल होगा, एक ही कार्पेल होगा. multicarpellary means एक से ज़्यादा होंगे. अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. मोनोकार्पेलरी टाइप के पिस्टिल या इस तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे प्लांट्स जैसे कि मैंगो. Then we can also observe this in coconut. Then other example avocado. Avocado ये Indian origin नहीं है, but it is also having monocarpellary type of flowers. multicarpellary के examples अगर हम देखते हैं rose, lotus, hibiscus, राइट. ये सारे मल्टीकार्पेलरी टाइप के प्लांट्स हैं. इन प्लांट्स के फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं. दिस मल्टीकार्पेलरी फ्लावर्स फर्दर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सिंकार्पस एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड एपोकार्पस. सिंकार्पस मीन्स जिसमें जो मल्टीपल कार्पेल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ रहेगी, कुछ ना कुछ हिस्सा उस कार्पेल का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा. लेकिन जो एपोकार्पस होते हैं फ्लावर्स, उसमें ये सारे कार्पेल्स, एक से ज़्यादा जो भी कार्पेल्स है, 2, 3, 4 या जो भी नंबर्स है, ये सारे अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे. तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस फ्लावर, राइट. इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे आगे. और A typical pistil or carpel has three important parts: stigma, style and ovary. So the gynoecium, or which is also called as megasporophyll, has these three parts: stigma, style and ovary. So here are the examples. पहला जो ये एग्जाम्पल है ये हिबिस्कस का है. सो हिबिस्कस में आप देख सकते हैं ये जो गाइनोइशियम स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें एक ही ओवरी है, एक ही स्टाइल है इतने लेंथ तक, लेकिन यहाँ पे ये स्टाइल वाला हिस्सा बाइफर्गेट होता है. इस हर एक हिस्से पे
एक सेपरेट स्टिग्मा पोर्शन है। राइट। सो ये जो एग्जाम्पल ये है सिंकाउपस का। सिंकाउपस मीन्स मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, लेकिन जिसमें जो कार्पेल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहेंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में रहेंगे। राइट। ये उसका रियल टाइम पिक्चर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिबिस्कस में इस पोर्शन में आपको यहाँ पे 5 अलग अलग स्टिग्मा दिखेंगे। यानी स्टाइल का जो हिस्सा है आगे वाला, यहाँ से ये बाइफर्केट होता है 5 ब्रांचेस में। राइट। और उस हर एक ब्रांच के एंड पे एक एक स्टिग्मा होगा। राइट। सो this hibiscus flower, it is having around 5 carpel, but among these 5 carpels its ovary part and the most of the style part, it is fused together, and stigma, at the end of the stigma the style is getting bifurcated into 5 branches. Right. Other examples under Syncarpus flower may include papaver और पॉपी प्लांट, जो कि आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है। राइट। papaver means simply अफीन का पेड़। So this papaver has also got the Syncarpus multicarpellary flower. Members of Solanaceae family also has got Syncarpus flowers. Right. So these are the few examples where we can observe Syncarpus multicarpellary flowers. So this is the example of papaver which has been included in your textbook image. Now next type and examples are related to Apocarpus flower. Apocarpus flower. So Apocarpus, जैसे मैंने बताया था, उसके जो कार्पेल्स है या पिस्टिल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये है क्रिसमस रोज का। इस क्रिसमस रोज फ्लावर में आप देख सकते हैं ये जो 5 कार्पेल्स है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। उसका पूरा हिस्सा स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी वाला हिस्सा भी एक दूसरे से अलग अलग है। राइट। सो 5 कार्पेल्स के लिए 5 अलग अलग ओवरी, 5 अलग अलग स्टाइल और 5 अलग अलग स्टिग्मा होंगे। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एपोकार्पस। राइट। टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो है मिचेलिया। मिचेलिया मीन्स आप कॉमनली उसको चंपा फ्लावर्स के नाम से जानते होंगे। राइट। सो दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम मिचेलिया which is commonly called as champa. Right. So these are the examples related to Syncarpus and Apocarpus flowers, which are the types of multicarpellary flowers. Now let us discuss about the individual parts of the pistil or carpel. Stigma. So stigma is a free end of carpel, and it is also serving as the landing platform for the pollen grain after the process of pollination. Right. So this region, which is a free end of pistil, it is called stigma. After stigma, the second part is called style. So style begins just beneath of the stigma. It is a long, narrow
tubular structure which is connecting the ovary and the stigma. So it is a tubular structure which is present in between the stigma and the ovary. The next part is ovary. So it is a basal swollen part of carpel which is remain attached to this thalamus. This ovary has an ovarian cavity with one or more chambers, and these chambers are also called as locules. So you can see here I have included two examples. In first example, in the cross section of ovary, we can see there is only single chamber present over here. But in second diagram, we can see that there are many number of chambers present, right? So the ovary may have one or more locules. The placenta is located inside the ovarian cavity or inside the locules. So as you can observe here, these ovules, they are attached with the part of ovary, right? Right. So this particular region, which is a cushion like structure where the ovules are attached to the ovary wall, it is called placenta. You might have learned about the placentation patterns in your 11th standard syllabus, right? So we are not going in much detail discussion on it. So the ovules, which are also called as microsporangia, they are arising from the placenta, right? So this is about the different parts of the carpel: stigma, style, ovary. The ovarian cavity is called as locule. The placenta structure is located within the ovarian cavity, and this placenta gives rise to the ovules or microsporangia. Now let us discuss more about the ovule or microsporangia. In some of the plants, an ovary may have only single ovule. As you can see here, there is only one ovule present in this carpel. Or in some other plants, there may be having multiple ovules. In here, it is single, and here it is multiple, right? So if you consider the examples, the plants like mango, rice, wheat, etc., having carpels with single ovule, while the plants like papaya, watermelon, and orchids, these are having carpels consisting multiple number of ovules. This is the structure of typical ovule present in most of the angiosperms. So one by one, we will discuss with the parts of this ovule and try to understand their functions. So let us first begin with the part which is attaching this ovule to the placenta. So if you consider this region, somewhere over here there must be placental region to which this ovule is attached, right? So this particular region in between the placenta and the ovule body, this stalk is called as funicle. Now after funicle, you can observe there is one junction over here, right? फ्यूनिकल और मेन ओव्यूल बॉडी के बीच में जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम. ज़्यादातर प्लांट्स में उनके ओव्यूल्स के अंदर ये जो फ्यूनिकल वाला हिस्सा है
ये एक्सटेंड होता है मेन ओव्यूल बॉडी तक, राइट, और एक लॉन्गिट्यूडिनल रीच फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेफी, राइट। सो दिस रेफी स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन टू द मैच्योर सीड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इस ओव्यूल का सीड के अंदर कन्वर्जन होगा तो हम उसमें ये रेफी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, राइट। द रेफी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज। उसके बाद आएगा इंटेग्यूमेंट्स। सो इंटेग्यूमेंट्स ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर है सराउंडिंग द मेन ओव्यूल बॉडी, राइट। यहाँ पे ये दो इंटेग्यूमेंट्स दिख सकते हैं आप, और इस तरफ से ये दो इंटेग्यूमेंट देख सकते हैं एक्सटेंड हुए, राइट। सो ये दोनों भी जो स्ट्रक्चर है ये इंटेग्यूमेंट्स स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होगा और इसका सीड में कन्वर्जन होगा तो इसी इंटेग्यूमेंट्स का आगे सीड कोट बनेगा, राइट। तो ओव्यूल्स के मेन बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, प्लस सीड फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो को, सीड को भी ये सीड कोट बना के प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आएगा चलाजा। सो ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलेंगे चलाजा। सो चलाजा इज बेसिकली अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। उसके बाद एग्जैक्टली इस चलाजा के ऑपोजिट एंड में यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, जो गैप दिख रहा है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, इस रीजन को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये ओव्यूल का ऐसा रीजन है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, राइट। तो इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे एक पोर फॉर्म करता है, एक होल फॉर्म करता है, उस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के काफ़ी सारे फंक्शंस है। बिफोर फर्टिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन में भी उसका इम्पॉर्टेंस है। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन में इस माइक्रोपाइल वाले रीजन से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, राइट। आगे जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन की प्रोसेस और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, उसमें आपको ये कंसेप्ट डिटेल में समझेगा, राइट। तो माइक्रोपाइल एक ऐसा रीजन है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होता है और उस पोलन ट्यूब के साथ मेल गैमेट्स एंटर होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा फंक्शन माइक्रोपाइल का आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड उसके बाद डोमेंसी में एंटर होते हैं, राइट। फिर उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए हम वाटर में सोक करके रखते हैं, या फिर जब सॉइल में हम उसको बोते हैं तो सॉइल के अंदर जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को ये सीड एब्जॉर्ब करता है, सोक करता है और फूलता है, राइट। तो इस प्रोसेस में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, जो एंट्री है वाटर की, वो वाटर एंट्री भी माइक्रोपाइल वाले रीजन की से ही होती है, राइट। सो जर्मिनेशन को इंड्यूस करने में वाटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और वाटर की एंट्री के लिए ये माइक्रोपाइल रीजन ज़रूरी है। यहीं से वाटर एंटर होगा और जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जर्मिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, पहले रेडिकल वाला पार्ट बाहर आता है, राइट। तो रेडिकल वाला पार्ट भी इसी माइक्रोपाइल रीजन से ही बाहर आएगा, राइट। तो माइक्रोपाइल के ये अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। उसके बाद जो मेन ओव्यूल का पार्ट है उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। मेन क्यों? क्योंकि यहीं से मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी और फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। So this nucellus is basically mass of parenchymatous cell. So this parenchymatous cells ultimately differentiate and they will give rise to the female gametophyte. तो इसी पैरन न्यूसेलस के अंदर यहाँ पे ऐसा एक एम्ब्रियोसैक फॉर्म होगा जिसके अंदर एग सेल होगा और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है और सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो न्यूसेलस जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट या फिर उसे हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं वो फॉर्म करने का काम करता है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ओव्यूल का। नेक्स्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। So as we already have gone through the structure of ovule, I am indicating in here, you can observe that this region, this nucellus region, it is having parenchymatous cells, right? And this parenchymatous cells goes through the differentiation process, cell differentiation process, and that is the beginning of megasporogenesis. ये जो न्यूसेलस वाला रीजन है जिसमें ये पैरेनकाइमेटस सेल्स है, इन सेल्स का डिफ्रेंसिएशन होगा और डिफ्रेंसिएशन होने के बाद वो फॉर्म करते हैं आर्केस्पोरियम। Right? So this archaeosporium, it is actually the मेगास्पोर मदर सेल। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने पढ़ा था एंथर के केस में, राइट? उसी तरह से ये एक मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करेगा, राइट? और ये डिफ्रेंसिएशन होता है करीब करीब माइक्रोपाइल वाले रीजन में, राइट? तो इतने रीजन के जो सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट होके आर्केस्पोरियम फॉर्म करेंगे और इसी में से आगे मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। अब ये जो आर्केस्पोरियम है या मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड होता है, राइट? तो यहाँ पे मैं एक ये जो सेल दिखा रहा हूँ ये है मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल का फर्स्ट स्टेप में मियोसिस होगा, राइट? सो मियोसिस 1, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे, राइट? उसके बाद कंटिन्यूएशन में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और यहाँ पे अब बन गए 4 सेल्स। लेकिन इन चारों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो सेम नहीं होता है। जनरली जो चलाजल एंड, ये जो चलाजल एंड है उस तरफ वाला जो सेल होगा वो साइज़ में बड़ा होगा और बाकी की जो 3 है वो साइज़ में छोटे होंगे, राइट? अब एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड था, राइट? अब मियोसिस के बाद ये जो 4 सेल्स फॉर्म हुए हैं ये चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में इन चारों सेल्स में से माइक्रोपाइलर एंड के ये जो 3 सेल्स है इनका डीजनरेशन हो जाएगा, राइट? सो दे विल start getting degenerated and ultimately only one haploid megaspore is remained. So ये जो एक बचा हुआ सेल है जो कि हैप्लॉइड होता है इसे हम बोलेंगे मेगास्पोर, राइट? सो मेगास्पोर किस में से बना? मेगास्पोर मदर सेल में से जो कि डिप्लॉइड था। अब ये मेगास्पोर हैप्लॉइड है, राइट? और इसी में से आगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मेगास्पोर सेल है ये कैरी करता है माइटोटिक सेल डिवीजन, ये माइटोसिस की प्रोसेस में एंटर हो जाएगा, राइट? तो जैसे ही माइटोसिस का एक साइकिल कंप्लीट होगा यहाँ पे इस सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, राइट? और ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के अपोजिट एंड में चले जाएंगे, एक इस चलाजल एंड में चला जाएगा और एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाएगा, राइट? सो फर्स्ट मियोसिस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे नोट कीजिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में और एक माइटोसिस डिवीजन होगा। सो दिस इज माइटोसिस डिवीजन सेकेंड। So at the end of this mitosis second, there will be 4 nucleus, 2 towards the chalazo end and 2 towards the micropylar end, right? इसके बाद और एक माइटोसिस का साइकिल कंप्लीट होगा
सो दिस इज माइटोसिस 3, राइट। तो जैसे ही माइटोसिस 3 कंप्लीट हुआ, अब इन 4 न्यूक्लियस के 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। लेकिन इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा? 4 न्यूक्लियस ये हो गए चलाजल एंड की तरफ, और ये जो 4 दूसरे हैं वो उसके ऑपोजिट यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो गए, राइट। तो इस तरह से जो मेगास्पोर सिंगल सेल था वो 3 माइटोसिस की डिवीजन कंप्लीट करता है। लेकिन इन माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, राइट। सो एट द एंड ऑफ दिस 3 माइटोसिस साइकिल्स देयर विल बी 8 न्यूक्लियाई विद इन दिस मेगास्पोर। अब जो है इन न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट होगी, राइट। तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी? 3 न्यूक्लियस जो है वो चलाजल एंड की तरफ रहेंगे, और 3 न्यूक्लियस ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेंगे। लेकिन 2 न्यूक्लियस, एक इस चलाजल एंड वाले जो 4 न्यूक्लियस है उस तरफ से, और माइक्रोपाइलर की तरफ से एक एक न्यूक्लियस माइग्रेट होके सेंटर में आ जाएंगे, दोनों तरफ से एक एक, राइट। जैसे ही इनका सेग्रीगेशन हो जाएगा, अब इन न्यूक्लियस के आजू बाजू उनका सेल बाउंड्री फॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो चलाजल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस थे, तो यहाँ पे 3 सेल बाउंड्रीज फॉर्म होंगे और 3 सेल्स बनेंगे। उसी तरह से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 न्यूक्लियस थे, तो यहाँ पे भी 3 सेल्स फॉर्म होंगे। और ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है 2, इसे हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियस। ये एक कॉमन, ये जो सिंगल कॉमन बड़ा सेल है ये उसकी बाउंड्री होगी, राइट। तो इस तरह से 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद जो 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे को रीअरेंज करते हैं, उसके बाद सेल बाउंड्रीज फॉर्म होते हैं, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। इस एम्ब्रियो सैक को हम 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद, और 7 सेल है। 3 सेल चलाजल एंड की तरफ, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, हो गए 6, और एक सिंगल लार्ज सेल। तो इस तरह से 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, राइट। अब इन सेल्स की पोजीशन और इनकी आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये जो 3 सेल है, इन सेल्स को बोला जाता है एग apparatus, राइट। सो एग apparatus में कितने सेल होंगे? 3 सेल होंगे। अब इन 3 सेल में से ये जो सेंटर वाला है ये एक्चुअली एग सेल है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली फीमेल गैमेट, राइट। और इसी सेल में से आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म होगा। उसके आजू बाजू में बगल में जो राइट और लेफ्ट साइड में 2 सेल है, इन दोनों सेल्स को हम बोलेंगे सिनर्जिड्स, राइट। इन सिनर्जिड्स के बेस में थिक रीजन होता है, राइट। तो इस थिक रीजन को हम बोलेंगे फिलीफॉर्म apparatus। अब इनका फंक्शन समझते हैं। जैसे मैंने बताया एग सेल, तो ये आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। अब जो सिनर्जिड्स है, ये सिनर्जिड्स के अंदर ये जो फिलीफॉर्म apparatus है ये कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, राइट। और इस केमिकल सिक्रेशन की वजह से जो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है स्टिग्मा रीजन में, उस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन मिलता है, और उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू दोनों में से एक सिनर्जिड को ब्रेक करके अंदर की तरफ एंटर होती है, राइट। सो एग apparatus में ये 3 सेल है और ये इनके 3 फंक्शंस है। ऑपोजिट टू एग apparatus चलाजल एंड, यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको 3 सेल्स दिखते हैं, राइट। इन 3 सेल्स को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स।
एंटीपोडल सेल्स का एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में ये यूज़फुल है, राइट। और ये जो सेंटर के जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, राइट। इन्हीं पोलर न्यूक्लियाई में से आगे जाके एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। तो एंडोस्पर्म ये फ्यूचर फूड रिजर्व है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए, जो ये एक फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए, राइट। और उस एनर्जी के लिए जो भी फूड चाहिए वो फूड एंडोस्पर्म के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होता है मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू। एक क्विक रिव्यू लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में ये न्यूसेलर सेल्स, इनका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है, राइट। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, राइट। ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस में एंटर होगा और मियोसिस में फर्स्ट मियोसिस के एंड में 2 सेल्स फॉर्म करेगा और सेकेंड मियोसिस के एंड में यहाँ पे 4 सेल्स फॉर्म होंगे, राइट। ये चारों भी जो सेल्स है इसे हम बोल सकते हैं टेट्राड, राइट। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर टेट्राड, वैसे ये मेगास्पोर टेट्राड है, राइट। लेकिन मेगास्पोर टेट्राड में जनरली 3 सेल्स की साइज़ छोटी होती है और चौथा सेल जो है वो बड़े साइज़ का होता है। तो जो बड़े साइज़ का सेल है वो सर्वाइव करेगा, बाकी के 3 डीजनरेट हो जाएंगे, राइट। सो ये 3 सेल के डीजनरेट होने के बाद एक ही सेल जो बचेगा बड़ा, उस बड़े सेल को हम बोलेंगे मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड होगा। अब इस मेगास्पोर का माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस फॉलो होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होगा, राइट। तो उस वजह से एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस सेकेंड माइटोसिस डिवीजन में एंटर हो गए। उसके बाद दोनों न्यूक्लियस में से एक एक और न्यूक्लियस बनेगा, तो टोटल हो गए 4 न्यूक्लियस। उसके बाद थर्ड माइटोसिस होगा, राइट। अब थर्ड माइटोसिस के एंड में चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड में 4 न्यूक्लियस देख सकते हैं। अब इन न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा और इन न्यूक्लियस के आजू बाजू सेल बाउंड्री क्रिएट होगी और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ ये बन जाएगा एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन में जो 3 सेल्स है उन्हें हम बोलते हैं एग apparatus। एग apparatus में 3 सेल होते हैं। जो सेंटर वाला बड़ा सेल है उसे हम बोलेंगे एग सेल। उसके आजू बाजू में जो 2 है उसे हम बोलेंगे सिनर्जिड्स, राइट। सिनर्जिड्स का रोल क्या है? टू गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन, राइट। इस सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म apparatus होता है वहाँ से कुछ केमिकल सीक्रेट होता है और इस सीक्रेशन की वजह से पोलन ट्यूब को उसका रास्ता मिलता है। ऑपोजिट टू एग apparatus जो 3 सेल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल और जो सेंटर के 2 न्यूक्लियस है बड़े सेल के अंदर वो है पोलर न्यूक्लिया। इस पोलर न्यूक्लिया से आगे एंडोस्पर्म बनेगा, राइट। तो इस तरह से ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।